We are starting our first chapter, that is number system. Now we are learned in earlier standard also different number sets. So let me revise that set first. First, the set which is denoted by n, it is said to be natural numbers. So which are the natural numbers? Already we have studied about that. 1, 2, 3, 4, 5, and so on. These all are said to be natural numbers. This dash statement, what does it mean? It goes on infinity. Means there are infinitely many natural numbers. Now, which is the smallest natural number? Obviously, it is 1. But which is the greatest natural number? That does not exist because it goes on infinity. So, greater to this, one more set that also we are learned, that is W, which is said to be whole numbers. Whole number starts from 0, 1, 2, 3, and so on. Means 0 is the smallest whole number. Now just here look at the sets. 1, 2, 3, 4, all natural numbers that lies within the whole numbers also. What does it mean? All natural numbers are also the whole numbers. But suppose if I say, can I say all whole numbers are natural? So obviously no, because 0 is such an element which does not exist in a natural number sets. So whole number, all whole are not natural because 0 is the exception. Greater to W, Z is there, it is said to be integers. So which are the elements within the sets? So in integers, 0, 1, 2, 3, and so on. And left to that, -1, -2, -3, dot, dot, dot. What does it mean? Integer is a set which consists all positive, all negative, and 0. 0, all positive and all negative. Means it is such a set where all whole numbers are there, and other than whole numbers or negative, integers are also be there. So what does it mean? In integer, all whole numbers are there. So whole numbers are also said to be integer. As all natural numbers are also be there, so natural number is also said to be integers. But reciprocal, it does not hold because negative number does not exist within whole number or natural numbers. Now greater to Z, again Q is there. This also said we have learned. So Q means what? It is rational numbers, or we can say these are rationals. So what does it? What definition of rational says? So rational numbers means it is a set of such a numbers which can be expressed in the form of P by Q. What is P and Q? So where we can say P and Q are integers, where Q does not equal to 0. Means rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of P by Q. P and Q are any of the integer. Any integer, what does it mean? Suppose numerator, if I say it is 2 and denominator is -3, it is a rational. As minus sign as the denominator, even though it is said to be negative rational. Or if I say -1/3, it is also the rational. If I say -2 by -3, it is also the rational, but as numerator denominator both are having negative minus sign, so both will cancel out and it is considered as positive rational. Similarly, 0 is said to be a rational because it can also be expressed in the form of 0 by 1. Similarly, every integer are also be said to be rational because every integer having 1 at the denominator. So as we know that any of the number does not having denominator means always 1 is there. So every integer, हर एक integer के denominator में हम 1 लिख सकते हैं. Suppose मैंने लिखा 5, so 5 के denominator में कुछ नहीं means 1 होता ही है. So it is also formed like P by Q. So 5 is also the rational.
इसका मतलब ये हुआ ऑल इंटीजर्स आर आल्सो बी रेशनल, ऑल होल नंबर्स आर आल्सो बी रेशनल और नेचर आर आल्सो बी रेशनल। तो इसका मतलब रेशनल में कौन सी वैल्यूज आती हैं? सो लेट मी से हियर एलिमेंट्स उसके मैं सारे लिख रहा हूँ। सो रेशनल नंबर में 0, then 1, then 2 and so on, all positives 0, as well as we can say here it is -1, then -2 and so on. तो सारे इंटीजर यहाँ पर आ गए। Other than these values, this set consists of number like 1/3, 1/2 और ये let me say 3/2 like that। मतलब सारे ये p/q फॉर्म वाले भी नंबर इसमें आते हैं। तो रेशनल नंबर ये z से भी बड़ा है। तो ये चारों सेट के बारे में हमने आगे पढ़ा हुआ है, बट इससे भी बड़ा एक नंबर है, उसे हम कहते हैं R. It is denoted by R. It is said to be real numbers. अब रियल नंबर्स मतलब कौन से नंबर? So again, it is such a set which consists of all rationals as well as irrationals. ये रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन means these all numbers are said to be rational. So all these numbers lies within the set, and apart from these numbers, irrational numbers are also be there. So what do you mean by irrational numbers? So उसकी proper definition हम आगे लेंगे, but right now here we can say any of the number expressed in the form of p/q, they are said to be rational. So obviously, reciprocal of that we can say the number which cannot be expressed in the form of p/q is said to be irrational. अभी हम इतना याद रखेंगे, मतलब क्या? तो फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि irrational, so as we know that √2, √3, √5, these all are said to be irrational. जिनका रूट नहीं निकलता means any of the root. Suppose if I say cube root of 7, it does not exist. But if I say cube root of 8, हमें पता है वो 2 होता है। So अगर कोई भी रूट उसका निकलता है तो उसे हम कहेंगे रेशनल, बट उसका कोई भी रूट नहीं निकलता तो दैट इज सेड टू बी इररेशनल। अभी हम यहाँ इतना ही याद रखेंगे। सो आर इट इज द सेट ऑफ रेशनल एज वेल एज इररेशनल्स। ओके, सो इसमें भी हम ऐसे कहेंगे कि फॉर एग्जांपल इसमें कौन सी वैल्यू आती है? सो 0, -1, -2 सो ऑन। देन आफ्टर दैट इट इज हमने कहा ये 1/3 था रैशनल नंबर, फिर यहाँ 1/2 था, देन यहाँ √2 भी होता है, √3 आएगा एंड सच दैट ये 2 एंड सो ऑन। ये ऐसी सारी वैल्यूज में मतलब यहाँ पे इंटीजर्स भी आ गए, रेशनल्स भी आ गए एंड इरेशनल्स भी अंदर हो गए। तो ऐसा ये सेट उसको हम कहते हैं रियल नंबर सेट। सो ग्रेटेस्ट टू ऑल सेट इट इज R। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर सॉरी रियल नंबर सेट्स में सारी की सारी वैल्यूज आ गई, सारे रेशनल में आ गए, सारे इंटीजर्स भी आ गए, होल भी आ गए, नेचुरल भी आ गए। सो इनका एक रिलेशन बन जाता है, वो हमें याद रखना है कि ऑलवेज सबसे छोटा था n। सो n उसके सारे के सारे वैल्यूज w मतलब होल नंबर में, सो वी कैन से n इज द सबसेट ऑफ w, w इज द सबसेट ऑफ z, z is the subset of q and q is the subset of r। तो छोटा जो भी है वो सेट बड़ा हो सकता है। वी कैन से नेचुरल्स आर होल बट होल आर नॉट नेचुरल। सिमिलरली हम कहें इंटीजर्स आर रेशनल्स बट रेशनल्स आर ऑल रेशनल्स आर नॉट इंटीजर्स। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर p/q वाले हमने जो 1/3, 1/2 वो इंटीजर में नहीं आते। तो इसका मतलब इसलिए हमें याद रखना है छोटा सेट बड़ा हो सकता है बट बड़ा सेट छोटा नहीं हो सकता। सिमिलरली हमें पता ये कॉमन है कि छोटे हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, पर बड़े इंसान कभी भी बाकी छोटे नहीं होते। तो याद रखने में बहुत इजी है, स्मॉलर कैन बी ग्रेटर बट ग्रेटर कैन नॉट बी स्मॉलर। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है। तो सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर भी देखा हमने कि ये 0 और 1 यहाँ पे दो वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू दिखी, यहाँ पे इंटीजर में नहीं दिख रही थी बट रेशनल में है तो उसके अंदर भी वैल्यूज आ गई। तो फॉर एग्जांपल हमने नंबर लाइन पे
नंबर्स रैशनल नंबर डिनोट करने का प्राइमरी में सीखा हुआ है. सपोज इफ यू आर गिवन 0 and 1, अगर इसके बीच में आपको कहा कि मुझे 3/10 ये इंडिकेट करना है, डिनोट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ 0 to 1 इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स. तो यहाँ 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now ये smallest, ये first value, it is said to be 1/10. It is 2/10. This is 3/10. So ये 3/10 इसको हम सर्कल कर देंगे. So this way we can denote rational numbers on the number line. ये हमने सीखा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर मुझे डोनेट करना होता 5/100, so I might have divided 0 to 1 into 100 parts. 100 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 5/100 उसमें से हमें मिल जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर के बीच में, दो रेशनल के बीच में कितने रेशनल्स हम फाइंड आउट करवाएंगे? सो दे आर इनफाइनाइटली मेनी. सो बिटवीन एनी टू रेशनल्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स. अब वो किसे फाइंड आउट? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने देखा है कि अगर हम डिस्टेंस वाइज बात करें तो 0 to 1 ये हमारा मान लो किलोमीटर का डिस्टेंस होगा. अब ये किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो हमें पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. इसका मतलब है इसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं 0 to 1 में, तो उसका एक पार्ट मतलब सपोज हमारा ये हो जाएगा मीटर. और हमें पता है कि अगर ये 0 to 1 इसको मैं एनलार्ज करके लिखूं कि मान लो ये 0 to 1 ये हमारा मीटर था, ये मीटर को अगर मैं 100 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो उसका एक पार्ट मतलब वो क्या बन जाता है हमारा? सेंटीमीटर. बिकॉज हमें रिलेशन पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. इसका मतलब हमने वो छोटे वाले पार्ट को अगेन 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब स्केल में भी हमने देखा कि अगर इसको मैं इनलार्ज कर दूं तो 0 to 1 ये सेंटीमीटर था, उसको अगर 10 पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे तो दैट इज सेड टू बी डेसीमीटर, सॉरी मिलीमीटर. तो ये हमारे स्केल, इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 पार्ट कर दिए तो मीटर मिला, मीटर के अगेन पार्ट कर दिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का अगेन मिलीमीटर. इसका मतलब मुझे कहना यही है, बिटवीन एनी टू रेशनल्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स. नाउ हाउ टू फाइंड आउट एट रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल? तो उसकी अलग अलग दो मेथड हैं. तो उसमें से पहली मेथड देखो. सपोज if we are asked to find out the rationals between find 4 rational between 2 and 3, तो सबसे पहली जो मेथड है उसको हम कहते हैं एवरेज मेथड. एवरेज मेथड, एवरेज मतलब हमें पता है कि एवरेज से हमें क्या मिलता है? दो वैल्यूज का अगर मैं एवरेज ले लूं तो उससे हमें मिड पॉइंट मिलता है. तो 2 and 3 इसका एवरेज लेना मतलब क्या है? 2 + 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5/2. तो जैसे ये 2 and 3 अगर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी तो 2 and 3 इसके बीच में ये सपोज ये नंबर लाइन पर दो नंबर मैंने लिए, तो इसके बीच वाला नंबर ये हमें मिल जाएगा 5/2. अगेन इन दोनों का एवरेज ले लो तो इनका मिड पॉइंट मिल जाएगा. इस मिड पॉइंट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन दैट टू नंबर्स. तो अगेन मैं मिड पॉइंट इसका एवरेज लेता हूं 2 + 5/2 डिवाइड बाय 2. अगेन 2 इज द एलसीएम, so 2 2s are 4 + 5 and divided by 2 will be multiplied, so it is 9/2. तो इनका 9/2 आ गया. सेम में इनका एवरेज ले तो इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, और इनका दोनों का मिड पॉइंट ले लो तो इसके बीच वाली वैल्यू. ऐसे मिड पॉइंट फाइंड आउट करते जाओ तो हमें दोनों के बीच वाली वैल्यू मिलती जाएगी. मतलब ऑल द टाइम हमें जितने रेशनल्स फाइंड आउट करने, 4 रेशनल्स अगर हमें फाइंड आउट करने को कहा था तो हमें एवरेज का 4 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. सो रेशनल फाइंड आउट, बट ये मेथड थोड़ी लेंदी है. तो अगर इसे एक स्पॉट में, अगर एट अ ग्लांस वन स्टेप में अगर फिनिश करना है तो एक और मेथड है जो इजी वे से हम कर पाएंगे. सो दैट इज वी कॉल्ड इट एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड.
ये मेथड का नाम मेंशन नहीं किया, बट हम ये वे से कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसको ये मेथड का नाम दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको पता होगा, मतलब क्या, तो पहले मैं उसके बारे में समझा दूं कि सपोज इफ यू आर गिवन वन फ्रैक्शन दैट इज 2/3। नाउ इफ द फ्रैक्शन numerator and denominator both are multiplied by the same constant, it will become 4/6. So value of 2/3 and 4/6 both are same, because if I reduce the fraction, it is 2 2s are 2 3s are, मतलब reduce form same है. So 4/6 we called it as the its equivalent fraction to 2/3. तो ये मेथड से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे 4 रेशनल. फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है 2 and 3, इसके बीच में 4 रेशनल. ना याद रखो कि यहाँ पर p by q फॉर्म में लिखिए तो डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन, सो ऑब्वियसली इट इज 1. If I want to find out 4 fractions or 4 rational between 2, the denominator of that number it should be +1. मतलब 4 रेशनल फाइंड आउट करते हैं तो +1 मतलब 5 आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए. याद रखो डिनोमिनेटर 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 रेशनल जितनी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने होंगे, सपोज 5 रेशनल फाइंड आउट करने, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर मैंने 6 लाया. सो अगर मुझे 4 रेशनल फाइंड आउट करने हैं, सो हियर आई वांट टू गेट 5 एट द डिनोमिनेटर. सो 5 डिनोमिनेटर में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाई बाय 5. यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई 5 कर दूं, so equivalent fraction will become 5 2s are 10/5 and 5 3s are 15/5. तो देखो द सेम जो 2 and 3 वैल्यू थे उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 10/5 15/5 लिखा. सो ऑब्वियसली देखो 10 to 15 के बीच में हमें 4 गैप मिल गए. सो देयरफॉर डायरेक्टली लिख दो रिक्वायर्ड रेशनल्स आर 11/5, 12/5, 13/5 and 14/5. क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में चाहिए, इसलिए एग्जैक्ट हमें 4 वैल्यू मिली तो डिनोमिनेटर 5 आया. सो याद रखो जितने रेशनल्स हमें फाइंड आउट करने होंगे उसमें एक हमें प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में आना चाहिए. दिस इज मेथड. सो दिस मेथड वी कॉल्ड इट एज इक्विवेलेंट रेशनल्स और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड. ओके, अब इसी वे से हम लोग थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल one more example, find 3 rationals between 2/3 and 4/3. अब देखो यहाँ पे रेशनल्स दिए, 3 रेशनल फाइंड आउट करने, बट 2 and 4 डिनोमिनेटर आर सेम और न्यूमरेटर के बीच में गैप है सिर्फ एक का. ये 2 and 4 के बीच में एक ही हमें नंबर मिल रहा है, दैट इज 3/3 मींस 1. बट वी वांट टू फाइंड आउट 3 रेशनल्स. तो क्या करना पड़ेगा, ये न्यूमरेटर का गैप इंक्रीज करना पड़ेगा. सो अगेन हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसके फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करने के लिए हम लोग कोई भी कांस्टेंट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो सपोज हियर 2/3 मुझे 3 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर जितना बड़ा कांस्टेंट लेके मल्टीप्लाई करेंगे उतना न्यूमरेटर में गैप बढ़ता जाता है. अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो गैप होगा उससे 4 से मल्टीप्लाई करो तो और बढ़ेगा. इन शॉर्ट ये याद रखो कि न्यूमरेटर के बीच जितना गैप हमें इंक्रीज करना होगा उतना हमें बड़ा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा. पर हमें यहाँ पे 3 ही रेशनल फाइंड आउट करने, तो कोई नहीं, यहाँ पर मैं सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. सो इफ आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 एंड 4/3 is also multiply divided by 2 क्योंकि ऑलरेडी एक 1 तो रेशनल नंबर इन दोनों के बीच एक तो था, हमें सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर ज्यादा चाहिए थे, तो बड़ी वैल्यू ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2s are 4/6 एंड यहाँ पर हो जाएगा 8/6. तो देखो डिनोमिनेटर इज सेम 6 6 एंड द गैप बिटवीन न्यूमरेटर 4 and 8, वो हमें गैप 3 ही चाहिए थे, तो ऑनली 5 6 7 ये 3 मिल गए.
अगर मुझे ज्यादा रेशनल फाइंड आउट करने होते हैं तो इंस्टेड ऑफ 2 आई मेट मल्टीप्लाई बाय 3 और 4, जितने रेशनल चाहिए वैसे हम कांस्टेंट आगे बढ़ाएंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हमें रेशनल्स मिल जाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख दूं रिक्वायर्ड रेशनल्स आर 4 के बाद आएगा 5/6, ये होगा 6/6 एंड 7/6। दिस इज मैथड। इसी में एक और एक मेथड लेते हैं, एक सम ले लेते हैं। सपोज इफ यू आर गिवन फाइंड 6 रेशनल्स between 2/5 and 3/4। अब देखो ये सम कैसा है, जहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जब भी हमें रेशनल फाइंड आउट करने को कहे होंगे, यहाँ अगले वाले सम में क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, इसीलिए हमने सिर्फ न्यूमरेटर की गैप चेंज कर दी, वो बढ़ाने के लिए हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। बट यहाँ पर अब डिनोमिनेटर डिफर होते हैं, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, ये डिनोमिनेटर, इनका दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 होगा, बिकॉज 5 एंड 4 बोथ आर को प्राइम नंबर। सो को प्राइम नंबर है तो उनका प्रोडक्ट करके उनका एलसीएम मिल गया है 20। नाउ दोनों का एलसीएम 20, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 20 लाना है। सो 2/5, इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा 20 लाने के लिए 4/4 से, एंड ये 3/4 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 5/5 से, तो यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 4 2 8/20 एंड 3 5 15/20। तो देखो 8 एंड 15 ये डिनोमिनेटर सेम बन गए, बट न्यूमरेटर के बीच में गैप ऑटोमेटिक हमारे इंक्रीज हो गया है। तो 8 और 15 के बीच में हमारे रिक्वायर्ड रेशनल कोई भी आप ले सकते हो, 9/20, 10/20, 11/20, 12/13, 13/, ये 14/20 तक सारे कोई भी आप रेशनल ले सकते हो। बट अगर एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम करने के बाद सपोज आपका यहाँ पर न्यूमरेटर में गैप हमें 6 रेशनल नहीं मिलते, तो अगेन क्या किया होता हमने, फॉर एग्जांपल कि हमने एलसीएम ले लिया होता, हमारा ऐसे कुछ आ जाता 4/20 एंड सपोज ये 6/20 ऐसे कुछ आया होता, मतलब इसके बीच में गैप नहीं होता, तो क्या करते हैं, अगेन हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे कोई भी कांस्टेंट से 2 या 3 से, और न्यूमरेटर का गैप इंक्रीज कर देंगे। तो याद रखो, जब भी हमें न्यूमरेटर के बीच में गैप इंक्रीज करना होगा तो कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। बट उससे पहले अगर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो उनको एलसीएम लेके सेम बनाने होंगे, और सेम बनाने के बाद ही उनका ये गैप बढ़ाना है कि नहीं, वो तय करके हमें जो भी रेशनल चाहिए उतने हम रेशनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। So याद रखो, there are infinitely many rational numbers between given two rationals। वो फाइंड आउट करने के हमने दो मेथड देखी, एक का था एवरेज मेथड, बट ये एवरेज मेथड लेंथी है इसलिए हम उसका यूज ज्यादा नहीं करेंगे, बट ये सेकंड मेथड हम ज्यादा यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेशनल्स। सो याद रखो, हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। अगर आपको पूछा जाए ऑल रेशनल्स आर रियल, सो वी कैन से यस, बट ऑल रियल्स आर रेशनल, तो कहेंगे नो। क्यों, छोटे वाला बड़ा हो सकता है बट बड़ा वाला छोटा नहीं हो सकता, तो उसमें भी याद रखो क्यों नहीं, बिकॉज रियल नंबर सेट में इरेशनल भी आते हैं, रेशनल में वो नहीं आते। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है प्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।